میں ایک بات بالخصوص اردو آبادی سے کہتا ہوں کہ تم دلی جاتے ہو، لال قلعہ کی فصیلوں کو دیکھتے ہو، قطب مینار کی بلندی کو دیکھتے ہو، جامع مسجد کی عظمت اور تقدس کو دیکھتے ہو، تمہارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، تم فخر کرتے ہو۔ میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ لال قلعہ کے پاس ہونے سے تمہارا تاریخی نقصان ہو سکتا ہے، قطب مینار کی بلندی ڈھہ جانے سے تمہارا تاریخی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اردو زبان اگر سمٹ گئی تو تمہارا صرف لسانی اور تاریخی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمہاری نسلوں کا نقصان ہوگا۔ میں تو مجھے چونکہ دوسرے پروگرام میں شامل ہونا ہے اس لیے ذرا میں نے معذرت خواہی کر لی ہے کہ چند جملے اسلم صاحب نے دعوت دی کہ سیاسی میدان سے اوپر اٹھ کر بھی ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور ادب پر کسی سیاست کا نہیں بلکہ سیاست کے ادب کا اثر ہونا چاہیے، اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر میں آ رہا ہوں۔ اردو میری جان ہے، اردو میری ماں کی زبان ہے، اردو سے مجھے عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، اردو میرا ایمان ہے، اور اردو کی جہاں محفل سنورتی ہے، جہاں سجتی ہے، وہاں جانا میری پہچان ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کے قطروں کا جو آدمی پر فرض ہوتا ہے وہی مادری زبان کا فرض ہوتا ہے۔ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے، اسی گنگ و جمن کی آغوش میں اس زبان نے پرورش پائی ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں نے سب نے مل کر اس کی پرورش کی ہے۔ اور غلام سرور صاحب نے کہا کہ یہ بات 100% غلط ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اردو خالص ہندوستانی زبان ہے۔ جتنی یہ بات سچ ہے کہ اردو ہندوستانی زبان ہے، اتنی یہ بات بھی سچ ہے کہ آج اردو مسلمانوں کی زبان ہو کر ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اپنے ہی گھر میں انجان ہو گئی، میں بیچاری اردو ہوں، میں مسلمان ہو گئی۔ اس وقت میں اردو زبان کے تعلق سے شعرا آئیں گے، کلام سنائیں گے، یقیناً ہے کہ اردو کی خدمت شعرا نے بڑی کی ہے اور ان کی وجہ سے اردو کے لب و لہجے میں جو تازگی اور پاکپن ہے ان کے مرہون منت ہم سب ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ملک کی تاریخ دیکھیں تو اس ملک کی آزادی کی تحریک میں اردو زبان نے جو رول ادا کیا ہے، یقیناً ہے کہ دوسری زبانوں نے ادا کی ہوگی، لیکن اس لڑائی میں اگر امامت کسی زبان نے کی ہے تو اردو نے کی ہے۔ انقلاب زندہ باد کے نعرے ہو یا سرفروشی کی تمنا یا سارے جہاں سے اچھا اگر کسی زبان نے دیا ہے ہم کو امانت میں، ہم کو وراثت میں، تو اردو زبان نہیں ہے۔ اور آج اردو کہاں کھڑی ہے اس پر ہم کو احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی احتساب کی دعوت دینے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ اردو صرف ہماری بھول چال کی زبان بن گئی ہے۔ آج اردو ایک وقت یہ زبان اردو معلیٰ تھی اور لال قلعہ کی فصیل پر اس کی آواز وہاں سے نکلتی تھی اور پورے ملک میں اس کا اثر ہوتا تھا۔ آپ یہ جان رہے ہوں گے کہ آزادی کے بعد بھی اردو کی حیثیت بڑی پروانہ رہی، بلکہ آزادی کے پہلے جواہر لال نہرو کی شادی کا جو رقعہ چھپا تھا وہ اردو ہی میں چھپا تھا، اور اس وقت اردو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں، سکھ اور عیسائیوں کے درمیان میں، برادری کے درمیان میں تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں ملک کی آزادی کے بعد کچھ دیوانوں نے ملک کو تقسیم کر دیا اور ملک کے تقسیم کا اثر اردو زبان پر بھی پڑا، اور اس ملک میں حکومت کرنے والوں نے فرقہ پرستی کے لیے جہاں مذہبی علامتوں کا استعمال کیا وہیں اردو زبان کو بھی نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اردو کو دیش نکالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اردو کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے لیڈر جگن ناتھ مشرا کو فراموش نہیں کر سکتا، جس نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت دی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملنے سے پہلے ہم لوگوں نے 1980 میں میٹرک کیا ہے، اور ہمارے جو ہم جلیس رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اس وقت صرف اردو بحیثیت ایک زبان کی نہیں بلکہ اردو میڈیم تھی۔ تاریخ کی کتاب ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، آج بھی میرے استاد حیات تھے، رام بابو تھے، تو وہ جب ہمیں پڑھاتے تھے میتھمیٹکس تو کیونس بولا کرتے تھے، جیومیٹری کو بولا کرتے تھے، ہمارے سیکل شرما صاحب سے مرکب اور مخلوط بولتے تھے، مقناطیسی قوت بولتے تھے، بیک وقت اردو اور ہندی کے دونوں اصطلاحات استعمال کرتے تھے،
उर्दू उतनी लाचार नहीं हुई थी। लेकिन जब उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिला, उसी वक्त से बिहार उर्दू टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन ने उर्दू किताबों को छापना बंद कर दिया। अब मैं ये कहता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत मिली, सर पे ताज रखा गया और गर्दन में चुपके से तलवार भी रख दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनने से पहले जो फौकियत हासिल की, दूसरी जबान सरकारी जबान मिलने के बाद इनके कुछ ट्रांसलेटर्स, कुछ मुतरजिम, कुछ टाइपिस्ट तो बहाल हो गए, लेकिन उर्दू स्कूलों से निकाल दी गई थी। और आज भी मैं बता रहा हूं कि पहले स्कूलों का मानक मंडल 9+1 था, उर्दू और पर्शियन के टीचर थे, फारसी के टीचर निकाल दिए गए और अभी मानक मंडल 5+1 का हो गया है। और अगर वो नाफिज हो जाए तो हाई स्कूलों में उर्दू का टीचर भी नहीं मिलेगा। आखिर उर्दू के साथ ये शरारत कौन कर रहा है? मैं किसी और को बदनाम नहीं करना चाहता। उर्दू के साथ अगर कोई गफलत कर रहा है तो वो उर्दू आबादी है, वो आप है और हम हैं। आज क्या वजह है कि हम उर्दू के नाम पर जमा हुए हैं? आपके शौक को मैं सलाम करता हूं, लेकिन क्या हमारी बस्तियों में उर्दू के कितने अखबार आते हैं? हम बंगाली भाइयों को मुबारकबाद देते हैं कि शादी में उनके रखते छपते हैं, तो बंगाली जबान में छपते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुरजापुरियों के दरमियान में उर्दू आबादी में जिनके रिश्तेदारों का 90% अंग्रेजी से नावाकिफ है, वो अंग्रेजी में रखा छापता फख्र महसूस करता है और उर्दू में नहीं बल्कि अब दूसरी जबान में भी छापने लगा है। दुकानों की पेशानियों से उर्दू गायब हो गई है, स्कूलों की पेशानियों से उर्दू गायब हो गई है। सरकारी तमाम तर सर्कुलर के बावजूद भी जो इख्तियारात आपको हासिल है, आप और हमने गफलत बरती है। आज कई सालों से रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का काम बंद हो गया है। और आप जानते हैं पहले रजिस्ट्री ऑफिस में तो उर्दू के कलर लाजमी तौर पर हुआ करते थे, एक नकल नवेश होता था, एक प्रूफ रीडर हुआ करता था, लेकिन आपने और हमने जब उर्दू को छोड़ दिया उसकी मुलाजमत भी चली गई। उर्दू सिर्फ मुशायरों से जिंदा नहीं रह पाएगी, उर्दू सिर्फ अदब से जिंदा नहीं रह पाएगी। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ऐवानों में जो है उर्दू के जो ऐवान है, उर्दू की जो एकेडमियां है, जो फिक्शन हो या उनका अदब हो, वो आलमी पैमाने का अदब शाया हुआ है। किताबें एक से एक आ रही है, नावल से नावल तक और दास्तान से लेकर गजल तक जो शायरी हो रही है, बड़े पैमाने की बेहतरीन शायरी हो रही है। लेकिन उर्दू ऐवान में जिंदा नहीं रहेगी, बल्कि उर्दू आवाम से जिंदा रह सकती है और उर्दू का रिश्ता आवाम से बहुत हद तक कट गया है। हम चाहते हैं कि आइए हम और आप अहद करें कि आज जिस साहिब के बागपन के जुमले को हम सुनने के लिए आए हैं, तो किस वजह से उर्दू से हमारा एक लगाव है। मैं बिलखुसूस कहना चाहता हूं, पूरे मुल्क के मैं जाता हूं तो मैं उर्दू के ताल्लुक से जुमला किए बगैर नहीं रह सकता हूं कि जो कौम उर्दू अपनी मादरी जबान के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो शख्स अपनी माँ के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता है। उर्दू से मोहब्बत करना, उर्दू से रिश्ता कायम रखना हमारा लाजमी हिस्सा है। और आज उर्दू सिसक रही है, दम तोड़ रही है। मैं एक बात बिलखुसूस उर्दू आबादी से कहता हूं कि तुम दिल्ली जाते हो, लाल किला की फसीलों को देखते हो, कुतुब मीनार की बुलंदी को देखते हो, जामे मस्जिद की अजमत और तकद्दुस को देखते हो, तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, तुम फख्र करते हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि लाल किला के पास होने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, कुतुब मीनार की बुलंदी ढह जाने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, लेकिन उर्दू जबान अगर सिमट गई तो तुम्हारा सिर्फ लिसानी और तारीखी नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी नस्लों का नुकसान होगा। जबान सिर्फ मुंह से निकलने वाली हवा और पामाना अल्फाज का नाम नहीं है। जबान अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन और माजी की दौलत, माजी की अमानत हुआ करती है। आज उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, उर्दू कल्चर का नाम है, उर्दू तहजीब का नाम है। आप जान रहे हैं कि इस मुदन अजीज में जितना काम तारीखी काम, दीनी काम उर्दू में हुआ है, अरब में भी उतना नहीं हुआ है, पर्शियन में भी उतना नहीं हुआ है। इसलिए मैं उर्दू आबादी से गुजारिश करना चाहता हूं कि उर्दू को संभालिए। अगर उर्दू को आपने नहीं संभाला तो आपका दीनी और अखलाकी नुकसान भी होगा। आपके बच्चे डिप्टी नजीर अहमद को नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चे हाली को नहीं जानते, सर सैयद के दर्द भरे पैगाम से नाआशना है, इकबाल की पाकीज़ा ख्यालात से आपकी आबादी नाआशना है। चाहे हिंदी के लोग हो या उर्दू के लोग हो, मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं कि हिंदी के लोगों हिंदी को संवारो। उर्दू और हिंदी दोनों जोवा बहन है, अगर उर्दू मर गई तो हिंदी भी जिंदा नहीं रह सकती है। शंकर कैंदुरी साहब, आप लोग का बड़ा फरीजा है, जमुना भी बहे, गंगा भी बहे, तभी संगम जिंदा संगम बाकी रहेगा।
गंगा बहे और जमुना सूख जाए तो संगम बाकी नहीं रह सकता है। उर्दू अगर मिट जाएगी तो हिंदी भी जिंदा नहीं रह सकती है। मैंने कहा वाकया सुनाया कि गांव की दो जुड़वा बहन थी, दोनों की पैदाइश एक साथ हुई, रंग रूप एक साथ था, चोट किसी को भी लगती तो आंसू के कतरे दोनों के आंखों से टपकते। ससुराल गई, दोनों के साथ मेहंदी लगी, लेकिन एक दुल्हन को जब जहर दे दिया गया तो दूसरी दुल्हन भी मर गई थी। यकीन जानिए, जो सर सैयद ने कहा था हिंदू और मुसलमान इस बिचारी दुल्हन की दो रसीली आंखें हैं, किसी एक को तोड़ दोगे तो हमारा हिंदुस्तान जो दुल्हन है उसकी शकल सूरत बिगड़ जाएगी। यकीन जानो हिंदी आबादी के लोगों, अगर उर्दू मिट गई तो हिंदी जिंदा नहीं रहेगी। और हिंदी ही नहीं बल्कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो रफाकत है, जो मोहब्बत है, प्रेमचंद के जो अफसाने हैं, अलगू चौधरी जुम्मन के जो किस्से उसने बयान किए हैं, हिंदू और मुसलमानों की जो दोस्ती और उल्फत रही है, इस जबान ने हमें जोड़ कर रखा है। आइए हम और आप अहद करें कि इस वक्त उर्दू के जितने मसाइल हैं सब मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, उर्दू का खादिम होने की हैसियत से मैं आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ और लोगों से मुतालबा करना चाहता हूँ कि उर्दू के ट्रांसलेटरों की बहाली क्यों नहीं होती। 70,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है, वो उर्दू क्यों नहीं बहाल किए जाते। उर्दू अकेडमी की जगह खाली पड़ी हुई है, उर्दू मसावरती कमेटी की जगह खाली हुई है। उर्दू का एक अहम शोबा है जिसका डायरेक्टर कई सालों से मुस्तार है, मांगा हुआ है, डिपुटेशन पर है। मैं कहता हूं कि उर्दू के मसाइल को हल कीजिए, अपने घरों में उर्दू को जगह दीजिए। मेरे एक बात से जबान फिसल गई थी तो बड़ा चर्चा हुआ था, लेकिन मैं तमसीलन भी कहता हूं कि आज उर्दू आबादी में जाइए और उर्दू के अखबार तलाश कीजिए। तो उर्दू अखबार तलाश करना अब उर्दू आबादी में लगता है ऐसे कि सिखों की बस्ती में हम नाई की दुकान तलाश कर रहे हैं। उर्दू पढ़ने से लोग हो गए, हमारे बच्चे उर्दू पढ़ने से घबरा रहे हैं, उर्दू की तहरीर उनकी खत्म हो गई है। उर्दू के मुशायरे को कामयाब कीजिए, उर्दू के शोरा को इज्जत बख्शिए, उर्दू का एक पर्चा, उर्दू का एक अखबार अपने घरों तक जरूर पहुंचाइए। अगर उर्दू जिंदा न रही, यकीन जानो हिंदी मुसलमानों तुम्हारी तारीख भी बाकी नहीं रहेगी और हिंदू और मुसलमानों का जो रिश्ता है यह पाकिस्तान रिश्ता भी बाकी नहीं रहेगा। जरा मुड़कर देखो, यही साउथ में तेलुगु और कन्नड़ के नाम पर रियासतें अलग हो गई। पाकिस्तान का दो टुकड़ा सिर्फ हिंदी और बंगला के नाम पर हो गया। आजकल आलम ने कहा था किसी कौम को तुम तबाह करना चाहो, उसकी नस्लों की कब्रों पर शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। जब कोई कौम मादरी जबान जिसकी छीन जाती है वो कौम तो जिंदा रहती है लेकिन अपनी मादी की वरासत से महरूम हो जाती है, वो यतीम हो जाती है। आइए हम अहद करें, उर्दू लिखेंगे भी, उर्दू पढ़ेंगे भी, अपनी दुकान की पेशानी पे अपने कलम से नजराना लिखते वक्त, नात पढ़ते वक्त उर्दू का हम इस्तेमाल करेंगे, वरना सिर्फ जबान से हम उर्दू की बात करते रहे और उर्दू के कालिब की हमने हिफाजत नहीं की, रस्मुल खत की हमने हिफाजत नहीं की, तो उर्दू में जो चाशनी हो बाकी नहीं रहेगी। उर्दू जिंदाबाद। आज का ये बेहतरीन पद मुशायरा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब।